So let's start with the group 13 elements, physical properties. So the group 13 elements, the boron family, this group elements show a wide variation in properties. Boron is a typical non-metal, as we can see. We'll be able to see from here. This is a non-metal. How? See all these green colors are semi-metal, so it mainly behaves like a non-metal, although it is classified as a semi-metal. Aluminium is a metal, isn't it? Aluminium is a metal, right? But shows many chemical similarities to boron, and gallium, indium, thallium, and niobium are almost exclusively metallic in character. Other things are metallic, as we can see from this periodic table that the entire setup is metallic in nature. These are basically metallic in character. These are basic metals, as we can tell. These all are basic metallic in character. This is semi-metal and behaves mainly non-metallic. See, boron is a rare family, fairly rare element. Mainly, it occurs at like orthoboric acid, which is H3BO3, occurs as borax Na2B4O7.10H2O and kernite Na2B4O7.4H2O. Okay, so now we have to write it down. See, Na2B4O7.4H2O is kernite, and this Na2B4O7.10H2O, this is basically your borax. Alright, so this we need to remember. Right, in India, borax occurs in the Puga Valley in Ladakh and Sambar Lake in Rajasthan. The abundance of boron in Earth's crust is less than 0.0001% by the mass. The important question here is that there are two isotopes of boron, that is 10 boron and 11 boron. As we can see, that boron is atomic number of 5, but its mass number can be 10 or its mass number can be 11. So this occurs for 81% and in nature, and this occurs for 19% in the nature. So these are the isotopes of boron, may be asked in the exam. Right, aluminium is the most abundant metal and the third most abundant element in the Earth's crust, which is 8.3% by the mass. So maximum in Earth's crust is oxygen, which is 45% by the mass, followed by silicon, which is like 27 to 28% by the mass, and aluminium is the third most abundant element in the Earth's crust, which is nearly equal to 8.3% by the mass. Right. See, bauxite and cryolite are the important minerals of aluminium. We need to remember that. Okay, bauxite Al2O3.2H2O and cryolite Na3AlF6. We need to remember Al2O3.2H2O, bauxite, and cryolite Na3AlF6, cryolite. So, see, we need to remember these things. We need to remember these things. In India, it is found as mica, and it is basically occurs in mica ore, and it is found in like Madhya Pradesh, in Karnataka, and Orissa, Jammu Kashmir, okay, etc. Gallium, indium, and thallium are less abundant elements. These are found very less. Niobium is a radioactive element, and its half life is within seconds only, so its chemistry is not done that much. Right, its electronic configuration, these may be asked. And what is the atomic number of niobium? It is 113. What is the mass number of niobium? It is 286 gram per mole atomic masses, and mass number is 286. What is electronic configuration of niobium? It is radon 5F14 6D10 7S2 7B2. So far it has been prepared in the small amount, and half of it half of its most stable isotope is 20 seconds. Due to these reasons, its chemistry has not been established. Right, so we'll not be discussing about niobium in that great detail. Niobium is synthetically prepared radioactive element. Here atomic, physical, and chemical properties of the elements leaving niobium will be discussed below. So let's discuss the electronic configuration. The outer electronic configuration of these elements is Ns2Np1. However, niobium, you have seen this is Ns2Np2. So why? Because see, after the element of atomic number 111, from 112 to 118, as their half-life is very less, and within milliseconds their half-life goes off, and like they are highly radioactive, so their chemistry could not be 100% authenticated and established, and it is just an empirical electronic configuration. The exact authentication could not be done yet.
We require advanced techniques for that, and we'll be able to do that further in further years. So we have to just remember that the electronic configuration is ns2 np1, where n is the outermost shell. A close look at the electronic configuration suggests that while boron and aluminum have the noble gas core, gallium and indium have the noble gas plus 10d electrons, and thallium has the noble gas configuration plus 14f electrons plus 10d electron cores. See that boron and aluminum have noble gas core, means in their inside, look in their inside, what I want to tell, like for example, see, boron is 1s2 2s2 2p1, so the innermost shell is a noble gas configuration. Aluminum is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. So inside its inner shells are noble gas configurations, and this is not the case in case of your gallium and indium and thallium. What does that do basically? Gallium and indium, as you can see, gallium and indium is noble gas core plus this 3d10 electron. This extra 3d10 subshell is there, and its extra 3d10 electrons are there. The remaining is noble gas configuration. This up to this is noble gas configuration plus this extra 3d10 and this 4s2 4p1. Now what we can see in this indium, this is the noble gas configuration 3p6, right, till 3d10 and 4s2 4p6, till here is noble gas configuration. Then comes this 4d10 electron noble gas. So this noble gas configuration plus this 4d10 electron is there plus 5s2 5p1. So it consists of this noble gas configuration up till this, up till this, and noble gas configuration up till this. After that comes 3d10 and 4d10 configurations. Then comes 4p1 4s2 and 5s2 5p1. In case of thallium, what it does happen, this is a noble gas configuration till like 4s2 4p6. See, this is noble gas configuration, okay, plus this C, as we can see this even 4d10 you can consider up to this to be the noble gas configuration, up to this for example, okay, and this 5s2 5p6 also, this consists of noble gas configuration. What is extra? This 5d10 is extra and 4f14 is extra. So this noble gas configuration plus 4f14 plus 5d10 plus 6s2 6p1, this is the outermost shell, okay. This is what they are telling. So their electronic configurations are not noble gas only, they are noble gas plus extra d electrons or d subshells. That's where their chemistry will be a bit different than boron and aluminum, right? Thus, the electronic structures of these elements are more complex than the first two groups of the elements discussed in the unit 10. The difference in the electronic structure affects the other properties and consequently the chemistry of all the elements in this group, right? So now discussing towards the atomic radii. On moving down the group, for each successive number, one extra shell of the electrons is added. For example, let us consider here what we are discussing. As we move down the group, for example, from boron, this is only one shell. Then as we move down the group to aluminum, there are two shells. Sorry, this is two shells. As we move down the group, this is third shell, the three shells. And as we move down, there are four shells. There are five shells. There are six shells. There are seven shells or seven orbits, right? So as we move down the group, in general, a new shell is created. So hence the size should be increased. But however, there is one discrepancy. However, a deviation can be seen. Atomic radius of gallium is less than that of aluminium. And this is one of the most important questions which can be asked in the exam. See, compare the atomic size of gallium and that of aluminium. See, our common sense would tell that as we go from top to bottom, a new shell is added, so the gallium size should be greater than that of aluminium. But this common sense does not hold place here. Actually, the size of aluminium is greater than that of gallium, and as we move down the group, only in this case the size reduces. Why? Let us see why. First, let me give you the exact value of the atomic radius. See, the atomic radius of boron is this. As we move down the group, size should increase. Again, as we move down the group, size should have increased, but now see, size is not increased, this has decreased. After that, further, this is smooth, size increases only. So only in case of aluminium to gallium, there is a difference which has been seen. There's a difference which has been seen. Why the size decreases from boron to from aluminium to gallium? Now, this can be understood from the variation in the inner core of the d electronic configuration. See, this is just because of the screening effect. Why? The reason is a screening effect. Screening effect. The reason being screening effect. How the screening effect actually works, this can be understood from the variation in the inner core of the electronic configuration.
The presence of additional 10d electrons offer only poor screening effect for the outer electrons from the increased nuclear charge in gallium, right? So consequently the atomic radius of gallium is less than that of aluminium. Let's discuss. See, screening effect. Now what is the meaning of screening effect? See what the screening effect basically means. Look, for example, consider in the case of aluminium, screening effect. Case of aluminium. Okay, what does it actually say? This is the nucleus. Aluminium is basically 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3s2, 3p1, right? So there are like 2 electrons here. There are like 8 electrons in the inner shell, in the second shell, right? And there are 3 electrons in the outermost shell, and the 3 electrons are such that in this third shell there is 3s orbital, only one 3s orbital, so 2 electrons are there, and there are 3p orbitals. 3p orbitals are 3, and only one electron is there in this 3p orbital, right? This is the case. This is that the case that we are actually discussing. So now consider, see, now consider the inner electrons. The inner electrons will repel the outermost electrons, right? Because they are of same charge. This nucleus will attract the outermost electrons. However, the nucleus will attract the outermost electron towards itself. However, this inner electrons will repel the outermost electrons, right? So the inner electron shield outermost electron from the attractive force of nucleus, from the attractive force of nucleus, right? So see, the nucleus will not be able to have a greater attractive influence here, so it is easier to uh, remove the electron from the outermost orbit. Also, ionization enthalpy will also be less. Also, see, the size will also increase. See, because size decreases only when the effect of nucleus on outermost electrons is huge, so size will decrease automatically. एटम सिकुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है, तो साइज शेल का साइज भी छोटा हो जाएगा, एटम का साइज भी छोटा हो जाएगा. बट इस केस में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने शील्ड कर दिया, इन्होंने एक सुरक्षा कवच टाइप का बना दिया, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स को उस न्यूक्लियस के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ जाएगा. ठीक है, अब आते हैं अपन किस पे, गैलियम पे, है ना. बोरॉन एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे, अब गैलियम की बात करते हैं. तो इसमें ज़रा देखो, इसमें ये देख रहे हो कि नहीं, 4s2 4p1. तो यहाँ पे भाई साहब पंगा है, एक चीज़ का पंगा है छोटा सा, और वो पंगा क्या है अपन ज़रा बना लेते हैं. पहले अपन देखते हैं गैलियम के केस में. तो गैलियम में क्या होता है, 1s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, फिर 4s2. अब भाई साहब 3d10 भरेगा इसमें पूरा, ठीक है. अब 4p1 रहेगा, ठीक है. तो तुम क्या देख सकते हो, इसमें 4 शेल का खेल है कि नहीं. तो एक मान लो ये न्यूक्लियस आ गया, फिर 1s2 मतलब एस ऑर्बिटल में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर करके, फिर 2s2 2p6 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स उसने भरा दिए. फिर उसके बाद तुम देखोगे 3s2 और उसके बाद 3s2 3p6 और 3d10. ज़रा इसमें देख लो अच्छे से, ठीक है. इसमें नॉर्मल 3s2 3p6 तो है 1 2, ठीक है, सॉरी, इसमें 3s2 3p6 तो है, देखो 3s2 3p6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर गया. अब क्या है, अब क्या, फिर 4s2 वाला भरेगा. अब एक नया शेल जो आउटर मोस्ट शेल है बच्चों, उसमें 4s2 वाला भर जाएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यार. अब क्या भरा इसमें, 3d10 वाला सब शेल भरेगा. तो 3d10 खाली था ना. देखो थर्ड शेल में एक तो 3s ऑर्बिटल है वो पूरा भर चुका है,
फिर 3 3p ऑर्बिटल्स हैं जो पूरे भरा चुके हैं, 3px, 3py और 3pz, ये तो भरा चुके थे। उसके बाद फिर 4s2 वाला भरा n+l रूल के अब बाउस प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद 3d10 को भरना था, क्योंकि इसमें 3d ऑर्बिटल खाली था, वैकेंट था ना, अभी तक तो वैकेंट था। 4s2 पहले भरा गया, उसके बाद अब 3d10 भराएगा। तो 5 3d ऑर्बिटल्स होते हैं, 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx2y2 और 3dz2, है कि नहीं? ये पढ़ चुके हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब ये भराएंगे पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनको ब्लैक कलर इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन 3D को, है कि नहीं? अब ये भराना शुरू करेंगे थर्ड वाले में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, भरा गए सारे के सारे। अब भरा गए, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब 4p1 वाला भरेगा, 4s2 के बाद अब ये 4p1 वाला भर जाएगा, तो 4p1। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? आउटर मोस्ट शेल को मैं ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 4s2 और 4p1। फोर्थ शेल में 4s2 4p1, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। अब ज़रा देखो ये जो ब्लैक कलर है, ये जो ब्लैक कलर है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? 3d ऑर्बिटल है। 3d ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो 3d ऑर्बिटल्स हैं, दे ऑफर वेरी पुअर शील्डिंग, मतलब अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियस के अटैक से इन आउटर मोस्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को। किसके केस में? गैलियम के केस में। वो क्या होगा बेसिकली, ये न्यूक्लियस का जो इफ़ेक्ट है इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगा, बहुत अच्छे से इफेक्ट हो जाएगा इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, इनके शेल्स की जो साइज़ है वो सिकुड़ जाएगी, साइज़ ऑफ शेल्स सिकुड़ जाएगी, और साइज़ ऑफ एटम ये डिक्रीज़ कर जाएगा, ये डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ कर जाएगा, साइज़ ऑफ शेल्स डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। इसी के वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है एल्यूमिनियम में कि साइज़ इंक्रीज़ कर जा रहा है। यहाँ पे क्या, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल्स, ठीक है, 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, साइज़ एटम का डिक्रीज़ कर रहा है। यही रीज़न है कि कंबाइंड इफेक्ट की वजह से साइज़ ऑफ एल्यूमिनियम जो होता है वो गैलियम से ज़्यादा हो जाता है, यही रीज़न है इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे तो गैलियम की साइज़ 135 पिकोमीटर है, जो कि एल्यूमिनियम के साइज़ से छोटा है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यार ये आता है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी आता है यार, आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी आता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड्स डू नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप, ठीक है, डू नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड्स डू नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप, जैसे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में देखते थे कि इसमें क्या होता था कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो और जैसे साइज़ बढ़ रहा है एटम का, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो इन्फ्लुएंस है, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो रहा है, हेंस इट इज़ ईजियर टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। ये दोनों के केस में एस और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में होता है, लेकिन पी ब्लॉक में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट स्मूथ डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पे इंक्रीज़ भी हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है वो ज़रा देखते थे। डिक्रीज द साइज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम इज एसोसिएटेड विद द, अब देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। अब क्या हो रहा है, बोरॉन से एल्यूमिनियम में ज़रा चलते हैं, बोरॉन से एल्यूमिनियम में अब साइज़ बढ़ता है, एल्यूमिनियम का साइज़ ज़्यादा है, तो हेंस इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम का कम रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। द ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूटी इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वैल्यू बिटवीन एल्यूमिनियम गैलियम एंड फ्रॉम इंडियम टू थैलियम। अब क्यों हो रहा है, अब ज़रा पहले टेबल पर हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। देखो हम सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन ही एंथैल्पी देखते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है अगर हम देख पाएंगे तो, ठीक है। अब तुम देखो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ से आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होना चाहिए जी, यहाँ से घटना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जनरल ट्रेंड वैसा ही है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, तो यहाँ से यहाँ तो डिक्रीज हो गया। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम में देखो साइज इंक्रीज हुआ कि ये साइज इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, साइज डिक्रीज हुआ, देख रहे हो ना। तो साइज डिक्रीज हुआ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हुआ, हो गया कि नहीं, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये एक तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया यार। उसके बाद फिर क्या है, फिर अगेन डिक्रीज होगा, स्मूथ ट्रेंड है। लेकिन इंडियम से थैलियम में भी
भले से इंडियम से थैलियम में साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, फिर भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी फिर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ट्रेंड क्या था कि साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपना डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ से यहाँ में तो भाई साहब साइज ही डिक्रीज हो गया, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गया। लेकिन इंडियम से थैलियम के बीच में साइज तो इंक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होना चाहिए। सॉरी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होना चाहिए। साइज इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। ठीक है कि नहीं? तो कायदे से यहाँ से तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को घटना चाहिए, लेकिन ये फिर से बढ़ रहा है। दो जगह पर ये बढ़ रहा है। एक तो ये डिसकंटिन्यूटी तो था ही, और ये इंडियम से थैलियम में भी डिसकंटिन्यूटी हो गया। इसका रीज़न भी वही है, शील्डिंग इफेक्ट। साइज भले से ये मतलब घटा नहीं पाया, लेकिन शील्डिंग की वजह से इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़रूर बढ़ जाएगा। आप देखिए शील्डिंग इफेक्ट कैसे, ये देखिए इंडियम और थैलियम को ज़रा अपन देखते हैं। ठीक है, देखो इंडियम में 4d10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 3d10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों तो बहुत पुअर शील्डिंग करेंगे। 5s2 और 5p1 वाले इलेक्ट्रॉन्स की बहुत पुअर शील्डिंग करेंगे। बहुत पुअर शील्डिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत पुअर शील्डिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके वजह से इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों पे बढ़ जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब यहाँ पर आइए ज़रा थैलियम के केस में, है ना। थैलियम में देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये सारे हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स है ज़रा ये देखो, 5d10 भी है और 4f14 भी है। एक डी ब्लॉक ऑर्बिटल भी है और एफ ब्लॉक भी है। तो जितना पुअर शील्डिंग डी ब्लॉक करता है, उससे और भी गंदा पुअर शील्डिंग एफ वाला ऑर्बिटल करता है। एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग और भी ज़्यादा पुअर होती है। इट इज़ वेरी 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 पुअर, इट इज़ एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग बाय एफ ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल से भी ज़्यादा पुअर शील्डिंग होती है एफ ऑर्बिटल की। होती है कि नहीं होती है? एफ ऑर्बिटल की और भी पुअर होती है। ठीक है, तो उस पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इस केस में ज़्यादा रहेगा। इस केस में न्यूक्लियस ज़्यादा अच्छे से इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा, तो इसके वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में और ज़्यादा डिफिकल्टी होगी कंपेयर टू इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इंडियम के केस में निकालने में। इसीलिए थैलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, जो कि हम टेबल से देख सकते हैं। थैलियम का ज़्यादा है इंडियम से। ठीक है, तो ये पुअर शील्डिंग की वजह से यही चीज़ इसमें भी लिखी गई है। यही जो चीज़ है ये हम इसमें भी देख पाएंगे, अगर आप देख सकते हैं तो। ठीक है, the observed discontinuity in the ionization enthalpies between aluminium and gallium and between indium and thallium are due to inability of DNF electrons which have low screening effect okay to compensate for the increase in the nuclear charge। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस तो बढ़ रहा है, लेकिन भाई साहब ये भी तो देखो कि पुअर शील्डिंग हो रही है एफ और डी ऑर्बिटल्स के द्वारा। तो उसके वजह से इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये साइज बढ़ने के इफेक्ट को ये नलीफाई कर दे रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को उल्टा ये बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो दो जगह पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, एल्यूमिनियम से गैलियम के टाइम में और इंडियम से थैलियम जाते टाइम। ठीक है, दो डिसकंटिन्यूटीज इसमें शो होते हैं। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज एक्सपेक्टेड। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, उससे ज़्यादा दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। तो हमको मालूम ही, कॉमन सेंस है। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज वेरी वेरी हाई। इफेक्ट ऑफ दिस विल बी अपेरेंट व्हेन यू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ज़रा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ज़रा आ जाता है यार। अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल ट्रेंड क्या आता था कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और टॉप से बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है ना। तो इन जनरल तो यही होना चाहिए था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को घटना चाहिए था ना। लेकिन ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ बोरॉन से एल्यूमिनियम के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, लेकिन एल्यूमिनियम से थैलियम तक फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज मार्जिनली। दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स। क्यों भाई? क्योंकि हमको मालूम है गैलियम की साइज इससे छोटी है। ठीक है, फिर हमको मालूम है कि गैलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इससे ज़्यादा बड़ा है। फिर हमको ये मालूम है कि थैलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इससे भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो अब इंक्रीज हो रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी दो जगह पर। ठीक है, ऊपर से इसकी साइज़ इससे भी छोटी है,
तो इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से क्या होता है ना, बोरॉन से एल्यूमिनियम तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, लेकिन एल्यूमिनियम से थैलियम तक धीरे धीरे, बहुत ही कम बट मार्जिनली इंक्रीज होती है। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वी नीड टू रिमेंबर दिस, राइट। अब आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, विच इज द लास्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो सी, बोरॉन इज नॉन मेटालिक इन नेचर, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर सॉलिड, बहुत हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है एकदम, बहुत इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस है, बहुत क्रिस्टलाइन है, नॉन मेटालिक होने के बाद भी ये क्रिस्टलाइन लैटिस के फॉर्म का होता है, और इसका अनयूजुअली हाई मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स क्या है, सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। बोरॉन के केस में क्या है, ये नॉन मेटालिक है, नॉन मेटालिक है और बहुत मतलब क्रिस्टलाइन लैटिस है और अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और बहुत हार्ड है, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, सॉफ्ट हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट है और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है। गैलियम विथ एक्सट्रीमली लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम का क्या है, बोरॉन का तो बता दिया, अब गैलियम का अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट है बट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है, इट हैज़ अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट, और ये मतलब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है समर में, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई है कि ये हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस के केस में यूज़ कर सकते हैं, किसको, गैलियम को, गैलियम। तो डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम, ठीक है। बोरॉन से थैलियम में आप खाली इसको याद रखो कि डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये था आपका टोटल फिजिकल प्रॉपर्टीज आउट एंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टडिंग इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स।